Hello my dear student, today is the lecture video of standard 6th lesson number 5 decimal fraction. Okay, so in previous lecture already I explained what do you mean by decimal number, what do you mean by decimal point, how we can place the value of the given number, है ना, place value, this everything I already explained it. Okay, and some practice set we solved. Now in your textbook if you see in practice set means this practice set we solve the practice set 14, right student? तो practice set 14 का question number 1, question number 2, question number 3 I solved and 2 problems I given already homework to you. Okay, and now we are going in this lecture video I am going to start some word problems. 4 word problems are given. Let us go through the word problem. So I am not writing any question in the blackboard. We have to solve directly the solution. ठीक है, because I already told in lecture that I will not write any types of word problems question. Okay, you have to look after in your textbook whenever I am going to explain this question words problems, right student? तो सबसे पहले हमने word problems को read out करना है and we have to see that whatever the question is given to you that what we have to find in that question, है ना, उस question में क्या दिया हुआ है और आपको क्या find out करना है ये आपको खुद समझना होगा. ठीक है, so better you have to read that question 2 or 3 times. Okay, तो what is the question here? Avinash travel 42 kilometer 365 meter by bus. ठीक है, अविनाश नाम का एक जो लड़का था उन्होंने बस में ट्रैवल किया. कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है? 42 किलोमीटर 365 मीटर. किससे? बाय बस से उसने ट्रैवल किया है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि अविनाश नाम का एक लड़का था, उसने बस में ट्रैवल किया 42 किलोमीटर 365 मीटर. ठीक है, सेकेंडली क्या हुआ था? 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार. सबसे पहले उसने ट्रैवल अविनाश जो थे उन्होंने ट्रैवल किए थे बाय बस से, फिर सेकेंडली वो कार से मूव हुए. देन थर्डली उन्होंने क्या किया? बाय वॉकिंग. वॉकिंग मीन्स चलते हुए कितने किलोमीटर उन्होंने गए? 640 किलोमीटर. तो व्हाट इज द मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, है ना. वहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड है, हमेशा याद रखना कभी भी वर्ड प्रॉब्लम सेंटेंस में ऑल टुगेदर आए, ठीक है, या तो सम आए या तो टोटल आए. Okay, like this way if it is coming, तो what operation you have to do students? You have to do the operation addition. और जहाँ पे भी left आए, okay, और how much remain आए, ऐसे वर्ड्स आए, that time you have to do the operation what? subtraction, माइनस करना होता है. ठीक है, तो वो जो सेंटेंस में वर्ड प्रॉब्लम में ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल टुगेदर यानी वो अविनाश ने पहले बस से कितना ट्रैवल किया, देन बाय कार से कितना ट्रैवल किया, प्लस बाय वॉकिंग कितना ट्रैवल किया, दैट टोटल यू हैव टू डू एंड दैट विल बी द आंसर दैट हाउ मच टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अविनाश. ओके, have you understood? So let us write the word problem sentences. तो क्या था? First of all we have to write distance traveled by bus. ठीक है, we have to write kilometer here at the heading and meter. So कितने किलोमीटर वो गए थे अविनाश? 42 किलोमीटर और 365 मीन्स पॉइंट इज देयर. सो मैंने क्या किया? किलोमीटर और मीटर का बॉक्स अलग बना लिया. ठीक है, सो सेकेंडली क्या अविनाश ने ट्रैवल किया था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार. कार से कितने डिस्टेंस में गए? 12 किलोमीटर एंड हाउ मच डिस्टेंस? 460 मीटर. ओके, okay, then afterward next is distance. यहाँ पे ट्रैवल के बदले क्या वर्ड आएगा बेटा? वॉकड. वॉकड मीन्स वो चलते हुए गए थे ना, इसीलिए वॉकड बाय अविनाश. डिस्टेंस वॉक बाय अविनाश. ठीक है, कितने होगा? कितना किलोमीटर? 640 मीटर है. ओनली मीटर इज गिवन, नथिंग इज देयर, सो वी हैव टू अवॉइड 640 meter. And what you have to find here? Total. Total means you have to do the addition. So do the addition here. Okay, 5, 6, 6, 12. Okay, 12 plus 4, 16. Okay, then 10. 10 plus 4, 14. 1 carry. 2, 2, 4, 5. Means 55. Means last answer what you have to write here?
how many kilometer did he travel altogether? So what is the last answer? Total distance traveled by Avinash is what? 55 kilometer and 465 meter. Like this way they ask you and they told you that write your answer in decimal fraction. So we already write in the, or we can write the decimal fraction means 55.465. Have you understood? Means decimal fraction में भी आपको लिखना है तो इसी तरह लिखना है, ठीक है। ये हो गया अविनाश के बारे में। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अविनाश कितना था? 42 किलोमीटर 365 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बाय कार 12 किलोमीटर 460 मीटर एंड ही वॉकड how much? 640 meter. So we have to find the all together how much distance is travel. So what at that condition all together words are coming, so that time we have to do the addition. So I did here addition. After doing the addition I got that answer that how much total distance traveled by Avinash is 55 kilometer 465, and his decimal point you can write like this way. Okay, have you understood this first question? Let us go through the next question. I am going to solve one only question and remaining question you solve that. Now fifth question let us solve here. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? लेट अस रीड द क्वेश्चन। आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लोथ, है ना। तो आयशा नाम की जो लेडी थी, गर्ल थी, उन्होंने क्या लाया? एक कपड़ा लाया, एक एक क्लोथ लाया, और वो कितने मीटर का था? 1.80 मीटर का क्लोथ था। फॉर सलवार, मतलब सलवार के लिए उन्होंने कितने लेके आए? 1.80 मीटर, और कुर्ता टॉप के लिए 2.25 मीटर, ठीक है। दो चीज़ आयशा ने लाया, एक तो कुर्ता लिया और एक टॉप लिया, ठीक है, वो पर्टिकुलरली क्लोथ सलवार के लिए, ठीक है। इफ़ द क्लोथ कॉस्ट 120 रुपीज़ पर मीटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर मीटर, पर वर्ड इज कमिंग स्टूडेंट, सो यू हैव टू कंसिडर दैट पर मीन्स 1, ओके। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर, जैसे आप स्कूल की रिबन जो लाते हो स्कूल से, स्कूल की जो रिबन यूज़ करते हो गर्ल्स लोग, यूजुअली वो 1 मीटर लाते हैं, है ना। तो वैसे ही 1 मीटर का उसने कितना, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी थी कपड़े की? 120 रुपीज़ थी, ठीक है। तो हाउ मच मस्ट शी पे टू द शॉपकीपर, कितना टोटल अमाउंट वो शॉपकीपर को देगी, वो वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, एंड 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑलरेडी इट इज गिवन टू दैट 120 रुपीज़, बट टोटल क्लॉथ फॉर व्हाट क्लॉथ ही ब्रॉट टुगेदर ऑल द अमाउंट, दैट इज फर्स्ट कुर्ती और एक तो सलवार के लिए उन्होंने लाया था। तो वी हैव टू राइट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना दिया हुआ है आपको? ₹120, ठीक है। ये ₹120 पर मीटर। सो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ टोटल। तो टोटल उसने क्या लाया? एक तो उसने क्या लाया? सलवार लाया था, और एक कुर्ता के लिए, तो टोटल वी हैव टू फाइंड। सो टोटल क्लॉथ, टोटल कॉस्ट, ओके, व्हाट यू हैव टू राइट, और वी कैन राइट हियर टोटल क्लॉथ बॉट बाय आयशा। तो सलवार के लिए कितना मीटर लाया था उसने? 1.8 मीटर, और सेकेंडली नेक्स्ट इज 2.25 मीटर, ठीक है। देन वी हैव टू डू द एडिशन दिस वन, 1.80 प्लस 2.25, डू द एडिशन, हाउ मच इज कमिंग? 234, मीन्स टोटल इज 4.05 मीटर। मतलब टोटल उसने जो कपड़ा लाया था वो कितना था? 4.0 मीटर, बट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 4.05 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना होगा? सो व्हाट दे आस्क यू, हाउ मच मस्ट शी पे टू द शॉपकीपर। सो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पेड बाय आयशा to shopkeeper is equal to what you have to, this 120 you have to multiply it by 4.05, so you will get the answer.
ओके ये जो 4.50 है इसके आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सो लेट अस मल्टीप्लाई 120 इंटू 405, ओके। दिस डेसिमल पॉइंट यू कैन, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट पुट कर सकते हो, राइटली। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 6, ओके। 0 ज़ा then 0 then 0 then cross 2, okay, like this way you are doing the multiplication of 4 zeros are 0, 4 2s are 8, 4 1s are 4, add it 0 0 6 4 80, but point, our decimal point is after decimal point how many numbers are there? 2. So here 2 decimal point we have to remove it. So what is the answer here? 486, okay. This money he had to pay to the shopkeeper. To who is going to pay? Asha is going to pay. This much money जो है आशा जो है वो पेड करेगी किसको? शॉपकीपर को, क्योंकि उसने क्या क्या लाया था? कुर्ते के लिए कपड़ा लाया था और अपने सलवार के लिए जो भी मीटर के कपड़े लाया था, उन्होंने सबसे पहले क्या करना है? उनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ से. सो दैट मच मनी शी हैव टू गिव टू द शॉपकीपर. Have you understood? So like this way I explained question number 4 and question number 5. So remaining 2 word problems are there. It will very easy. Just you go through that. If you can't able to do, you can ask me also, okay. So here we are going to stop, and in next lecture video we will go through the next topic, okay. Thank you.